નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 7ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના ભાગ 3ની અંદર આપણને હિન્દી વિષય આપેલો છે અને ધોરણ 7ના ભાગ 3ની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં જે હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 6 છે, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ 7ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેમાં આપવામાં આવેલા દરેક વિષયોના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ સ્વ અધ્યયન પોથીના કોઈપણ વિષયના કોઈપણ પાઠનો અભ્યાસ કરવો હોય તો એના માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારી જે સ્વ અધ્યયન પોથીઓ છે એના જે સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ છે તે પણ તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતા રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે પાઠ નંબર 6, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। સર્વપ્રથમ તમે અહીંયા જોશો તો આપણને સારાંશ આપવામાં આવેલો છે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 અ, ઉચિત જોડ મિલાકર કોષ્ટક में से क्रम लिखिए। અહીંયા પહેલું આપણને આપ્યું છે 12 ઓગસ્ટ 1912, તો એને આપણે જોડીશું વિકલ્પ નંબર 6 એટલે કે એમના જન્મ સાથે। તે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ હતો એ દિવસે। ત્યાર પછી સન 1934થી 1937, તો એને આપણે જોડીશું 5 નંબર સાથે, ગુજરાત કોલેજમાં તેઓ હતા। સન 1942 એટલે કે 1942માં તેને આપણે જોડીશું 4 નંબર સાથે, વિવાહ સૂત્ર મેં બંધે। પછી છે સન 1961, એને આપણે જોડીશું 3 નંબર સાથે, ઉર્જા આયોગ કે સદસ્ય રહે। સન 1962 એમાં 1 નંબર આવશે ભટનાગર પુરસ્કાર, અને 1968 એને આપણે જોડીશું 2 નંબર સાથે, વિજ્ઞાન વિભાગ કે अध्यक्ष। चलो ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 1 ब, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान कीजिए। पहलो सवाल, विक्रम साराभाई 7-8 साल की उम्र में शिमला गए, तो जवाब आवशे खोटू। ત્યાર પછી બીજું, विक्रम साराभाई के बारे में गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी, तो जवाब आवशे खोटू। ત્રીજું, उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, तो जवाब आवशे साचું। चौथું, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम साराभाई भारत लौट आए, तो जवाब आवशे साचું। पांचमું, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी, तो साचું। छठो सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई हरिकोटा के लॉन्चिंग स्टेशन गए थे, तो जवाब आवशे खोटू। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 ક, ઘટનાઓ કે સહી ક્રમ કોષ્ટક મેં लिखिए। ચાલો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કુલ 6 ઘટનાઓ આપેલી છે। એમાંથી સર્વપ્રથમ ઘટના આવશે, અહીંયા 1 નંબર આપણે લખેલો છે, સાયકલ પર વિભિन्न કલાબાજીयां करते। ત્યાર પછી 2 નંબર ઉપર આવશે, कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता। 3 नंबर पर आवशे, हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोगी होगी। 4 नंबर पर आवशे, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन। 5 नंबर पर है, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना। અને 6 नंबर पर आवशे, आंतरराष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 1 ड, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में से सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ जवाब आवशे कर्म, तो कर्मनी सामे आपणे टीक करिए। बीजो सवाल, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए, तो यहाँ जवाब आवशे सुझाव। सुझाव અને પરામર્શ એ બંને જે છે તે ગલત છે। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજું, વિરુદ્ધાर्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है, तो यहाँ जवाब आवशे हलનું વિરુદ્ધાर्थी નિહલ नहीं થાય, तो અહીંયા આપણે એના ઉપર ટીક કરી દઈએ। चलो ત્યાર પછી છે ચોથું, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा, रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो यशस्वीનો अर्थ શું નહીં થાય, तो जवाब આવશે કુખ્યાત, તો એની સામે આપણે ટીક કરીએ। સહી વર્તની પહેચાનીએ, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સહી વર્તની છે ઉત્કૃષ્ટ। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 અ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1937 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से संस्थानों के साथ जुड़े रहे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इन संस्थानों के साथ जुड़े रहे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया, वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने और संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए।
ત્યાર પછી છે ત્રીજો सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया? तो જોઈએ उत्तर, विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की? तो જોઈએ उत्तर, विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी, इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। पांचवा सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी? तो જોઈએ उत्तर, देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एમાં पहलो सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी? तो જોઈએ उत्तर, 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं है। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आई कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? જોઈએ उत्तर, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ, कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पसंद है, क्यों? हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना, हिसाब किताब करना, अंधेरे में प्रकाश फोटो खींचना, ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं। चौथो सवाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना और उनकी बीमारी का इलाज करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज्ञान और कौशल्य से लोगों का जीवन बेहतर बना सकूं। पांचवा सवाल, किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि उसने समाज, देश या किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। सम्मान उसकी निष्ठा, मेहनत और योगदान की सराहना के रूप में दिया जाता है, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, શબ્દો को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो जो અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે મહાન એક વિક્રમ સારાભાઈ વૈજ્ઞાનિક थे, તો વાક્ય બનશે વિક્રમ સારાભાઈ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક थे। બીજું છે थे ભાઈ બહન 8 વિક્રમ સારાભાઈ, તો અહીંયા વાક્ય બનશે વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહન थे। ત્રીજું, एक परिवार उनका प्रतिष्ठित परिवार था उद्योगपति, तो અહીંયા જવાબ આવશે કે उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। चौथुं, साहसिक प्रिय थे उन्हें कारनामे, तो यहाँ आवशे उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। बहुत बालक यह होकर बड़ा बनेगा यशस्वी, तो यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે એ પ્રમાણે પહેલું આપણને આપ્યું છે મૂર્તિ, તો મૂર્તિનું બહુવચન થશે મૂર્તિયા। હવે બંનેના વાક્ય જોઈએ, પહેલા મૂર્તિ ઉપરથી, તો વહ મૂર્તિ अच्छी है અને મૂર્તિયાનું થશે વે મૂર્તિયા अच्छी है। ત્યાર પછી છે ચિઠ્ઠી, તો ચિઠ્ઠીનું બહુવચન થશે ચિઠ્ઠિયા। વાક્ય પ્રયોગ આ રીતે આવશે, उसने मुझे चिट्ठी भेजी અને उसने मुझे चिट्ठिया भेजी। ત્યાર પછી છે તોતા, તો તોતાનું થશે તોતે। વાક્ય પ્રયોગ આવશે डाल पर बैठा तोता उदास था અને અહીંયા વાક્ય પ્રયોગ આવશે डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे। लिफाफाનું થશે लिफाफे, वाक्य प्रयोग આવશે वह लिफाफा दे दो અને અહીંયા આવશે वे लिफाफे दे दो। મિત્રો, ધોરણ 3 થી 8ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ ભાગના તમામ વિષયના તમામ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। જો તમે પણ આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનનો વિડીયો અને પીડીએફ મેળવવા માંગતા હોય તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી ક્લિક કરી અને તમે દરેક સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક વિષયના દરેક પાઠના સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી શકો છો। અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, પ્લે સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અને ત્યાંથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। વધારે માહિતી માટે તમને અહીંયા નંબર આપેલો છે, કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો।
ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 5, निम्नलिखित विधानों में से सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને 6 વાક્યો આપવામાં આવેલા છે, એને આપણે નિશ્ચિતવાચી સર્વનામ અને અનિશ્ચિતવાચક સર્વનામની અંદર વિભાજિત કરવાના છે। ચાલો, તો અહીંયા પહેલું આપણને આપેલું છે કે યહ લડકા બડા બહાદુર હૈ, તો એમાં યહ એ નિશ્ચિતવાચક થશે। मुझे कोई बचाओ, तो એમાં કોઈ જે છે તે અનિશ્ચિતવાચક થશે। અંધેરે में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ જે છે તે અનિશ્ચિતવાચક થશે। वह महाभारत का पात्र है, तो वह એ નિશ્ચિતવાચક થશે। वे गांव जा रहे हैं, तो वे પણ નિશ્ચિતવાચક થશે। उन्हें मत सताओ, અહીંયા નિશ્ચિતવાચક કે અનિશ્ચયવાચક બેમાંથી એક પણ સર્વનામ આપવામાં આવેલું નથી। ચાલો, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो मित्रों, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એનું ભાષાંતર આપણે કરવાનું છે। કંઈક આ પ્રમાણે થશે। જો પુસ્તકાલયમાં જતી વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ। ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચવા જેની તમને જરૂર છે। પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે। જો વિદ્યાર્થીઓ લાઇબ્રેરીમાં જઈને માત્ર વાર્તાઓના પુસ્તકો વાંચીને પોતાનો સમય બગાડે, તો તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને લાઇબ્રેરીમાં બેસીને શાંત વાતાવરણમાં એકાગ્રતાથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં એકાગ્રચિત્તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા પેન વડે ચિહ્નિત કરવું, તેમના ચિત્રો ફાડવા કે ગંદા કરવા વગેરે કરવું યોગ્ય નથી। ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે એવું વર્તન ન કરવું જોઈએ કે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને। પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી, તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે। તેથી આપણે પુસ્તકાલયના પુસ્તકોને દૃષ્ટિકોણથી જ જોવું જોઈએ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। हासिल, तो અહીંયા આવશે हासिल करना। योगदान, तो योगदान देना। समर्पित, तो समर्पित करना। विकास, तो विकासशील। साहसिक, तो साहसिकता। महान, तो महानता। प्रतिभा, तो प्रतिभाशाली। निधन, तो निधन के बाद। सानिध्य, तो सानिध्य में। અને प्राप्त, तो प्राप्त करना। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, अपनी राय दीजिए। तो यहाँ आवश्य विज्ञान का एक भी आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता। तो जवाब आवश्य यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। आज की तकनीक जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट, जिनके बिना संचार और जानकारी का आदान प्रदान बहुत कठिन होता। आधुनिक दवाएं, टीकाकरण और सर्जरी जैसी सुविधाओं के बिना कई बीमारियां जीवन को खतरे में डाल सकती थी। परिवहन के क्षेत्र में बिना वाहनों, हवाई जहाज़ों और रेलवे के यात्रा और माल परिवहन अत्यंत कठिन और समय लेने वाला होता। ચાલો, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, નિબંધ લેખન કીજીએ। વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ। તો જોઈએ આપણે આ સરસ મજાનો નિબંધ। विज्ञान की देन अद्वितीय है। प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान अनेक रूपों में मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। यह सत्य है, परंतु इसका दूसरा पहलू भी है। विज्ञान मनुष्य के लिए समस्या बन चुका है। आज उसके आविष्कार की हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं। विज्ञान की मदद से किए जाने वाले हमारे दैनिक कार्यों में कई ऐसी बातें जुड़ती चली गई जिनके कारण धरातल के संपूर्ण जीव जगत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मनुष्य ने अपना दैनिक जीवन तो सुलभ बना दिया, परंतु आगामी पीढ़ी के लिए धरती एक समस्या सी बनती जा रही है। अंततः ऐसे विचारों के लोगों की संख्या कम नहीं है जो विज्ञान को एक अभिशाप के रूप में देखते हैं। साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। आज पूंजी मुख्य रूप से चंद लोगों के हाथ में सिमट गई है। लाभ का एक बड़ा हिस्सा मिल मालिकों व भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में जाता है। वहीं दूसरी ओर काम करने वाले लोगों तक उतना नहीं पहुंचता जिससे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाता है। इसके फलस्वरूप पूरा समाज धनवान और निर्धन में विभाजित हो गया है। इन्हीं कारणों से संपूर्ण विश्व भी पूंजीपति व समाजवादी देशों में विभाजित हो गया है। अंततः विज्ञान ने आज मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है। संपूर्ण विश्व के देश आज प्रगति के पथ पर एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं तथा सभी अपने को शक्ति संपन्न देखना चाहते हैं। बारूद का आविष्कार इसी प्रतिस्पर्धा की देन है। नाना प्रकार के हथियार विकसित हो गए हैं। रॉकेट, मिसाइल, बम, युद्ध में प्रयोग होने वाले जहाज तथा अनेक प्रकार के रासायनिक उपकरण मानव के विनाश के लिए तैयार है। हाइड्रोजन तथा परमाणु बम तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम इसका ज्वलंत उदाहरण है।
बढ़ते प्रदूषण के कारण दिन प्रतिदिन प्रकृति का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत निरंतर इससे प्रभावित हो रहा है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए खतरा बन सकता है। विज्ञान ने यदि मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचाया है तो उसने उसे विनाश के गर्त पर भी ला खड़ा किया है। वास्तविक रूप में यदि इसका अवलोकन किया जाए तो हम देखते हैं कि इसकी शक्ति अपार है। यह मनुष्य के अपने विवेक पर है कि वह इसका प्रयोग किस प्रकार करता है। विज्ञान का समुचित दिशा में किया गया उपयोग उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इसका दुरुपयोग इसके लिए अभिशाप भी बन सकता है। અહીંયા ત્યાર પછી આપણે આ પાઠને પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર જે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે।